में क्या है, आपको सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया अप्लाई करनी है. कौन कौन सी अप्लाई करनी है? आई एम टेलिंग यू. द फर्स्ट इज ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल. सेकेंड इज योर ट्रिपल एस, side side side. And third is your SAS, side angle side. And fourth one is AA, okay, angle angle. So by that four similarity of criteria you have to prove all that questions which are mentioned in exercise 6.3. So इसमें only four similarity of criteria apply करनी है आपको. So let's start from question number 4. Question number 4, I am telling you what is the question. In this figure, okay, 6.36, this figure is given to you in which QR upon QS is equals to QT upon PR. Okay, ये इसकी रेशियो क्या है? इक्वल की हुई है. एंड एंगल 1 and angle 2 है. Angle 1 and angle 2 are equal. So these two angles are equal and their corresponding sides are divided into the same ratio. So this is given. When you will observe this figure, so angle 1 is equals to angle 2, angle 1 and angle 2, ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं. सो दे आर टू मेनली ट्रायंगल्स. आपको प्रूफ क्या करनी है? इसमें प्रूफ करनी है आपको PQS एंड TQR. इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करनी है. PQS, ओके, यू कैन सी दिस ट्रायंगल. एंड नेक्स्ट वन इज TQR, TQR. सो बिगर वन ट्रायंगल. हमने इसमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करे हैं, PQS and TQR. मेरे दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करनी है. Okay, here this is given, angle 1 and angle 2 is given equal. So you know that angle 1 and angle 2 किस triangle की बात हो रही है? If you will join this line to this point P, so now in triangle PQR, so in triangle PQR, when angle 1 and angle 2 are equal, then we can say side opposite to the equal angles are equal. तो इसकी जो साइड होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी. सो वी कैन राइट लाइक PQ is equals to PR, isn't it? हम इसको PQ को PR के इक्वल कर सकते हैं. ओके, नाउ इन ट्रायंगल PQS and TQR you can write, हमने पहले क्या किया? सिंस इट इज गिवन, सो वी हैव इक्वेटेड, हमने इसको साइड को इक्वल किया है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम. नाउ in PQS and TQR, QR upon QS equals to QT upon PR. Okay, this is given. QR upon QS, QR upon QS. It means first bigger triangle की बात करी, दूसरी smaller triangle की, इसको same ratio में divide किया, equals to QT upon PR. QT upon PR. So PQ लेना चाहिए, but in place of it PR is written. But just you equated, आपने अभी just equal किया है, PQ को PR की equal किया है. So here in place of this PR, this is given to you, QR upon QS is equals to QT upon PR. But in place of it you need PQ. Since PQ and PR are equal, so you can write in place of this PR PQ. Why I have written? Because you can say now in both triangles TQR and PQS, okay, that corresponding sides will be divided into the same ratio. So that's why you can write now QR upon QS is equals to QT upon PQ. So first thing you have written here. Now one more thing, because आपने इसकी साइड को अगर बता दी है तो you know that आपको साइड एंगल साइड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, because आपने टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें. व्हाट यू नीड नाउ, आपको एंगल आपको फाइंड आउट करनी है. सो व्हेन यू विल ऑब्जर्व इन दिस फिगर, सो इन बोथ ट्रायंगल this Q is common in both triangles. So you can write TQR is equal to PQS, which is common. Okay, कॉमन क्या है? इसकी एंगल, दोनों की एंगल 1 है, सो आप लिख सकते हो एंगल PQS इक्वल्स टू TQR इक्वल्स टू 1. नाउ बाय साइड एंगल साइड, हाउ? दिस साइड, ओके, हमने पहले साइड को लिए, एंगल साइड. So by SAS similarity of criteria, we can say PQS will be similar to TQR. Did you get it? This question number 4. Ma'am, again. Okay. Again, I am telling you, this is very simple. These two things are given. Angle 1, angle 2 को equate किया है. Okay. अब देख सकते हैं इन दोनों को अगर इक्वल किया, सो अगर इन दोनों को अगर इक्वल करा है तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इन दिस ट्रायंगल PQR, okay, angle 1 and angle 2 are equal,
तो उसकी जो साइड होगी अपोजिट साइड वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। हमने थ्योरम पढ़े थे 9th में, अगर एंगल इक्वल होती है तो साइड इक्वल होगी, अगर साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल इक्वल दी हुई है, सो यू कैन राइट हियर PQ इज इक्वल्स टू PR। आप इस दो साइड को इक्वेट कर सकते हो, तो आपने इसको पहले इक्वल बताया with the help of that theorem that you have studied in class 9. Now this is given QR upon QS and QT upon PR. Okay, ये given है आपकी QR upon QS, QT upon PQ लिखना चाहिए था यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में, बट इन प्लेस ऑफ दिस PQ what is written here PR, बट हमने अभी जस्ट PR को PQ पे इक्वल किया है. Now we can write in place of it like QR upon QS is equals to QT upon PQ. Okay, जो हमने ऐसा लिखा तो what we are getting इसके रेशियो को हमने इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिए इन बोथ द ट्रायंगल. लाइक बिगर वन ट्रायंगल में PR को PS हमने QS लिखा, and in bigger now in this side QT upon PQ we can write here. So हमने पहले इसके साइड्स को corresponding साइड्स को हमने क्या करें, सेम रेशियो में डिवाइड करें. जो हमने साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिए तो हम जब साइड को करें तो हमारे पास एक ही तो हमने क्राइटेरिया हमने थ्योरम पढ़नी है क्लास 10th में, which is SAS. ओके, रिलेटेड टू साइड स्पेशली, और दूसरी कौन सी थी, ट्रिपल S. तो यहाँ पे तो आपने दो साइड को corresponding साइड्स को इक्वेट करे हैं, तो यू हैव नाउ एंगल. तो आप एंगल को फाइंड आउट करोगे कौन सी एंगल को दोनों ट्रायंगल में आप इक्वेट कर सकते हो. सो इन ट्रायंगल TQR एंड PQS, बिकॉज आपको यही दोनों तो आपको सिमिलर प्रूव करने, तो इन दो ट्रायंगल में आप देख सकते हो एंगल 1 इज कॉमन. दोनों में एंगल 1 क्या है, कॉमन है, और एंगल Q इज कॉमन. So you can write here angle 1 is equals to angle 1 in both the triangle. So by SAS criteria, both triangle will be similar. Now you got it? Yes, ma'am. एटलीस्ट इसको आप प्रैक्टिस करोगे जितने भी क्वेश्चन हैं. 6.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजी हैं. Question number 5, now I am telling you. Question number 5 is S and T are the points on side PR and QR. Okay, PR and QR, it means आपको क्या करनी है, ट्रायंगल. Okay, RPQ PQR एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एंड सेकंड थिंग RTS. सो टू ट्रायंगल्स होने चाहिए. नाउ S and T are the points. S and T दो points हैं which is on side PR and QR of triangle PQR. So firstly you have to draw PQR and you have to draw this S and T you have to place on this side PR and QR of triangle PQR. So इस statement के according पहले आप figure draw करोगे, and such that what one more thing is given, angle P is equals to angle RTS. So we have to show that angle how RPQ is similar to RTS. So according to question we have drawn figure, because in this question figure नहीं दिए हुए हैं. So in PQR triangle the question is saying S and T are the points. S is mainly placing on the side PR. So PR की आपको just कहीं भी आप S प्लॉट करोगे. सेकंड थिंग आपकी QR पे कौन सी पॉइंट है, T. सो आपने S एंड T को क्या किया, प्लेस किया ऑन साइड PR एंड QR. नाउ वी हैव अनदर वन ट्रायंगल RTS. क्वेश्चंस में बोला है हमें प्रूफ क्या करनी है, RPQ को RTS के सिमिलर प्रूफ करनी है. RPQ RTS, इट मींस बिगर वन ट्रायंगल जो आपको दिख रही है. ओके, दिस इज योर RPQ and next one is RTS. आपको ये दो ट्रायंगल क्या करनी है, सिमिलर प्रूफ करनी है. ओके, एंड व्हाट वन मोर थिंग इज गिवन, एंगल P, दिस एंगल P is equals to RTS. ओके, सो एंगल P जो आपकी है इस एंगल की इक्वल है, तो आप इसको भी शो कर सकते हो. दिस इज गिवन फर्स्टली एंगल P is equals to एंगल RTS. सो हमने फर्स्टली गिवन को लिखा है. ओके, तो दोनों ट्रायंगल में हमने पहले इसको शो किया. नाउ इन बोथ ट्रायंगल एंगल R इज कॉमन. आपको R तो दोनों में कॉमन दिखी, कॉमन आप सब में फाइंड करोगे. ओके, इसमें जितने भी 6.3 क्वेश्चन है 6.3 एक्सरसाइज में उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगी ही होगी.
तो आप पहले कॉमन भी आप देख सकते हो. सो हियर आर एंगल आर इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल. ओके, दोनों में एंगल आर कॉमन दिख रही है, so हमने कॉमन लिखा. इट मींस बाय ए सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर. Isn't it easy? This question number 5. Is there any query? हमने पहले गिवन को दी है, दूसरा हमने कॉमन फाइंड किया एंड बाय ए सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया दोनों को सिमिलर बताया. नथिंग एक्स्ट्रा वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन बिकॉज only one more thing is important, that was your figure. अगर आपने figure properly draw कर लिया so it will be easy for you. Say any query, students? No, ma'am. Now next question, question number 6. Question number 6 is in figure 6.37. This is your figure. If triangle ABE, आपको यहाँ पे अगर you know that I know that आपने just SST की क्लास ली है and फिर मैथ्स की क्लास ले रहे हो, but just to try to understand only, आपको जितना समझ में आता है आप समझने की कोशिश करोगे. कहीं अगर होगी आपकी अपनी क्वेरी then उसको आप प्लीज रेज करोगे. So in figure 6.37, AB is similar, sorry, this is congruent to ACD. ABE, so this is your ABE is congruent to ACD. तो ये दो जो ट्रायंगल दिख रही है आपकी ABE and ACD, both are congruent. अगर congruent होते हैं तो उसके सारे corresponding sides equal होंगे and उसकी जितनी भी angle corresponding angle होगी वो भी equal होगी. Okay, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आती है. Now we have to show that ADE, this smaller one triangle, how this is similar to bigger one triangle. Okay, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूव करनी है. So here in triangle ABE and ACD both are congruent. So it means इसकी जितनी भी जो sides होगी वो भी क्या होगी, by CPCT equal होगी. Okay, corresponding parts of congruent triangle. So आपने इसको क्या किया, उसकी sides को equate किया. Now AB is equals to AC, ये complete side आपकी equal होगी. Next is A equals to AD, AE is equals to AD, ये भी तो equal होंगे. How? Because in triangle ABE आप इस साइड को ACD की दूसरी साइड AD की इक्वल कर सकते हो. Now so we can say like AB upon AC, this AB upon AC is equals to AD upon AE. We can write इसकी corresponding sides को same ratio में डिवाइड कर सकते हो because हमने अगर इन दोनों को इक्वल किया है. So अगर मैं AB लिखूं upon AC, so अगर इन दोनों को मैंने इक्वल करा है so we can write AB upon AB. so हमारी रेशियो क्या होगी, 1:1. सिमिलरली अगर आप AD upon AE को भी करोगे और ये दोनों भी इक्वल है तो उसकी रेशियो भी क्या आएगी, 1:1. इट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे. तो फर्स्ट वन में इसको फाइंड आउट कर लिया. नाउ अगर आपने साइड को उसे करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया है एंड फॉर सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया व्हाट यू नीड वन मोर एंगल. ओके, फॉर proving it, this is similar to this triangle ABC. So AB upon this AC is equals to AD upon E. Okay, now one more thing, common इसमें क्या दिख रहा है आपको, दोनों triangle में angle E common दिख रही है. So you can write angle A is equals to angle A which is common. So by SAS similarity of criteria, this smaller triangle will be similar to triangle ABC. Is this clear? Yes, ma'am. Now next question, question number 7. This is so simple and here you have to tell the answer. मैंने questions वैसे लिखे हैं, just आपको अभी तक जो मैंने बताया है similarity criteria कैसे use करनी है. One question will be one question, first question तो मैं आपको बताऊंगी, but rest of the questions you have to say. So this is your figure, okay, and here what is given, AD and EC. This AD and EC are altitude of triangle ABC. ये दोनों क्या इसकी height है. Now we have to prove, हमें ये सारी सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया यूज करनी है. बट इसमें मैं आपको हमेशा मैंने बोला है कि
आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। किसी भी दो ट्रायंगल में कुछ भी कॉमन है तो आप एक कॉमन लिख सकते हो और दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो वो क्या हो सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो सकते हैं, ऑल्टरनेट हो सकते हैं। So here in triangle AEP, when you will observe this figure, AEP and second is CDP. Okay, आपको ये दो ट्रायंगल लेनी है। जो क्वेश्चन में लिखा होता है, जो आपको प्रूव करनी होती है, उसी ट्रायंगल को आपको लेनी है। So in both triangle, what you are observing here, vertically opposite angle are equal. So we can write here APE. First आप क्या लिख सकते हो, APE is equals to CPD. ये क्या होंगे, vertically opposite angle. Next, what you can find out, both are 90 here. अगर ये 90 है तो इस साइड भी आपकी 90 होगी. So AEP is equals to CDP. So next you can write AEP is equals to CDP. Okay, each will be 90. So by AA यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं, A. So by A similarity of criteria, this will be similar to CDP. So AEP आपकी क्या होगी, CDP की similar होगी. Now tell me the next one, ABD. Again I am telling you this ABD. Here ABD. And next one is CBE. CBE. So tell me what you can say here in both the triangle. Please find out. Figure I'm showing you on your screen. So please tell me any one thing. आपको जो 90 exactly ABD. So ABD में ये तो आप एक एंगल 90 बता सकते हो. And second thing, okay, एंगल D90 होगी और दूसरी एंगल आपकी CBE. CBE हमें आपका एंगल E90 होगी. तो ये दोनों आपने 90 बताया. सेकंड कुछ भी फाइंड करो और क्या हो सकता है. कॉमन कॉमन आपको फाइंड करना है. डोंट फॉरगेट दैट. व्हाट इज कॉमन? टेल मी व्हाट इज कॉमन. B. Yes, angle exactly. So you can say here in both triangle आपकी एंगल जो B है वो क्या है, कॉमन है. तो इन दोनों को भी आपको सिमिलर बता दिया. और टेल मी द थर्ड वन. सो हमने फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, एंगल D और एंगल E को 90 बताए हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में, एंड एंगल B को कॉमन बताए हैं. सो बाय A सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ये सिमिलर होंगे. नाउ से द थर्ड वन, AEP. AEP and ADB. ADB. इस ट्रायंगल की बात हो रही है, कंप्लीट बिगर वन ट्रायंगल ADB की बात हो रही है. ओके, what you can observe and what you can find out. कॉमन पहले आप मुझे बता दो, कॉमन क्या है दोनों ट्रायंगल में, क्या कॉमन दिख रहे हैं? 90 है. तो कॉमन क्या दिख रहे हैं? अगर मैं दोनों ट्रायंगल में देखूं AEP इस ट्रायंगल में, हाँ 90 तो एग्जैक्टली 90 तो है, बट आई एम आस्किंग व्हाट इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल. एंगल A, बिकॉज इन ADB. यस, सो एंगल A, फर्स्ट आपके एंगल A कॉमन होगी एंड नेक्स्ट क्या होंगे, दोनों 90 होंगे. कौन से 90 होंगे, एंगल E एंड एंगल D. सो अगेन यू अंडरस्टूड, आई थिंक सो. तो थर्ड भी आपको समझ में आ गई. नाउ फोर्थ वन यू से. This is your PDC. So this smaller one triangle, okay, and BEC. BEC. दोनों से एक्चुअली क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चंस इक्वल हैं, सब में आपको A क्राइटेरिया ही अप्लाई हो रहे हैं. So each is 90 again, and one more thing is common, right? So in this D, in CDP, D is angle, this angle is 90, and BEC, अगर आप BEC triangle में देखोगे, okay, BEC, so E is 90, so each 90 you can write. And second one thing, what is common? So here angle C is common, so you can write angle C will be common. So you got it. Question number 7, all of you. Say Divya, Ragini,
पृथ्वी, सपना. Question number 7. I hope you understood. So आप इसको practice Yes, ma'am. करोगे. Very good. Now the next question, question number 8. देखो मैं फास्ट तो नहीं, मैं कोशिश करूंगी एक ही क्वेश्चन को मैं मल्टीपल टाइम्स बताऊं जिससे आपको समझ में आने चाहिए. ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो आप कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 8. E is a point on side AD. आपको पहले एक साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. आपको एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ करनी है. ओके, एंड इन पैरेललोग्राम ABCD AD को थोड़े क्या करने, एक्सटेंड करने, प्रोड्यूस करने हैं till point E. Okay, so E is a point on the side AD. Side AD के साइड कौन सी पॉइंट है? E. बट AD को प्रोड्यूस करने पे फाइंड आउट की गई, सॉरी प्लॉट की गई है इन पैरेललोग्राम ABCD. एंड B इंटरसेक्ट CD at F. So according to this statement पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है एंड देन हमें शो क्या करनी है, ABE is similar to CFB. So let's draw the figure first and then what we have to show so we can understand from the figure. Okay. So I'm explaining mainly figure how we have drawn. We have to draw firstly ABCD is a parallelogram. तो हमने पहले parallelogram draw किया है. And the statement is saying E is a point. E is a point on side AD. AD के side E एक point है. Okay. Produced of a parallelogram जिसमें AD को produce की गई है. तो हमने पहले ABCD parallelogram draw किया. इस line को हमने extend किया and हमने E point को हमने place किया on the side AD. Okay, and one more thing is given B intersect. जो आपकी B है फिर आप B को join करोगे because उसने बोला है B, तो side B आपने join करने हैं. So B intersect CD. CD को intersect कर रही है at point F. So आपने क्या करे, उसको B को पहले join किया and then you will join this side BC, sorry BE, it will intersect CD at point F. तो आपको यहाँ पे point F आपको place करनी है. तो हमने पहले फिगर, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले फिगर ड्रॉ किया. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग ABE. हमें प्रूफ क्या करनी है, ABE. ओके, A E. So this bigger one is similar to CFB. जो आपको bigger one triangle दिख रही है ABE, इसको आपको इस smaller one triangle के सिमिलर करने हैं. So we can observe in this figure in parallelogram as we know this angle A and angle C. अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये दो एंगल क्या होते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सो यू कैन राइट हियर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C. B को D के इक्वल करोगे तो इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता. सो यू कांट, आई मीन इस कंप्लीट एंगल को अगर आप इक्वल कर दो, आपको तो एक्चुअली दो ट्रायंगल को करनी है. सो दो ट्रायंगल में हमने क्या देखे, एंगल A एंड एंगल C को हम इक्वल कर सकते हैं. सो वी हैव इक्वेटेड एंगल इक्वल्स टू एंगल C. ओके, हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. नाउ आपको इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करनी है. सो यू हैव टू टेक दिस बोथ ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB. ओके, ये बिगर वन ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को. So in both triangle, angle A equals to angle C, which we have proved above, and you can see like both, I mean AB and CD are parallel lines. So parallel lines में क्या होता है, कोई भी अगर आप लाइन आप ड्रॉ करते हो तो alternate angle इक्वल कर सकते हो, that property, because DC is parallel to, as here DC is parallel to AB. आपको DC parallel दिख रही है, so you can write angle B is equals to angle F, right? So this angle, इस ट्रायंगल में आप देखोगे ABE, तो ये जो आपकी एंगल B है, इट इज इक्वल टू एंगल F. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस alternate property. Okay, alternate angles. So हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं. Now by angle we can say this ABE will be similar to CFB. Is there any doubt in this question number 8? No, ma'am. Okay, so today I just want to know
Who can explain this question number 8? I am showing you question and you have to explain here. I know I am taking online class. So Aditi, Divya, Ragini, Sapna and Shivam. आप लोग में से कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8? जो भी आपको स्क्रीन पे अपीयर जो आपको दिख रहा है, ओके? So could you explain it question number 8? What's the problem? Please don't hesitate. जो भी आपने सीखा है ना अभी बस यस बच्चा दिव्या से बच्चा प्लीज. In parallelogram ABCD opposite angle are equal, so हमने angle is equal to angle C करा. जब हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लेते हैं तो हमारा एंगल A is equal to एंगल C हो गया. फिर हमारा एंगल ABE is equal एंगल BFC होगा क्योंकि वो अननेट एंगल होगा क्योंकि हमारा AC जो है वो पैरेलल है AB के. अब हम ये ए के सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसे प्रूफ. Very good, very good. I'm very happy to listen your voice, Divya. Very good. आपने बहुत अच्छे से explain किया. So I think Divya had understood this question very well, and rest of the students also. So please, जब भी आपको कोई से भी टीचर कहते हैं explain करने को, please don't hesitate. Hesitation क्यों रखनी है? Okay. Now next question, question number 9. So I think time is gonna go. So the last question, question number 9, I am telling you. In question number 9, what we have to prove according to this figure. This figure is given. Okay. हमें 2 questions हमें दिए हुए हैं. इसको prove करनी है first. Triangle ABC को similar बताने AMP. You know that इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब में सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको अप्लाई करनी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है. एंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी आपको सारे नहीं अप्लाई करने, सिर्फ 4 अप्लाई करने. ओके. सो ABC इन दिस ट्रायंगल ABC, हाउ दिस इज सिमिलर टू AMP. यू कैन सी लाइक आपने 2 यहाँ पे ट्रायंगल देखा है. फर्स्ट तो दिस इज योर ABC. आपको इस ट्रायंगल को this AMP, ओके. इन 2 ट्रायंगल को क्या करनी है? सिमिलर प्रूफ करनी है. तो 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. सो अगर 2 ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हो केयरफुली तो आपने क्या फाइंड करे? दोनों 90 एंगल B इज इक्वल टू एंगल है. सो यू कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल AMP. तो फर्स्ट तो आपने ईच 90 बता दिए एंड दोनों में कुछ कॉमन आपको बताया कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन हो तो आपको कॉमन एक बार फाइंड करनी है. अगर कॉमन नहीं होता है सो you can get some different idea. Okay, so here angle A is common. दोनों में angle A common दिख रही है. Okay, तो हमने पहले दोनों में each 90 बताया, दूसरे common बताया. तो by A criteria के थ्रू आप इसको क्या बता सकते हो? By A similarity of criteria, angle triangle ABC will be similar to AMP. Okay, हमने first तो बता दी. First is very simple. But what about second? How could you say the answer? Sorry, how could you prove it? This question second, question number 9 second. Tell, if you have any idea, tell me then. Yes, students, tell me. How could you prove this question second? Do you have any idea? First is very simple. So that first, अगर आप hint लेते हो, तो आप second बता सकते हो. See, आपने क्या कर रहे हैं? ABC को AMP के similar proof कर रहे हैं. So if any 2 triangles are similar to each other, it means their corresponding sides divided into the same ratio. So आपको क्या करनी है? Like आपको reason बताना है. Since this ABC is similar to AMP, which is proved above, so their corresponding sides, ratio of the corresponding sides of both the triangle will be equal. तो दोनों क्या होंगे? उसके ratio equal होंगे. Like C upon PA. This CA upon PA, हमने इसकी corresponding side ली. दूसरे BC upon MP. This BC upon
MP. Okay, so you can write here CA upon PA. This CA upon PA आप लिख सकते हो. दूसरा आप क्या लिख सकते हो? BC. This BC upon it is not, हाँ या BC upon MP. So BC को MP के सिमिलर बता सकते हो. ठीक है, तो इसका रीजन आप बता सकते हो. corresponding sides of similar triangle will be equal. यहाँ पे BC upon MP नहीं होने चाहिए, आपकी MP और AP होने चाहिए थे. Here, in case of this MP, it should be AP. So this question number 9 understood? Shivam, Sapna. Yes, ma'am. मैम सेकंड वाला आप सेकंड बता दो. सेकंड फिर से बताती हूँ मैं. अब देखिए आपके दो ट्रायंगल को सिमिलर बताया. सिमिलर अगर आप बताते हो तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल तो नहीं, बट उसके जो रेशियो होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं. तो आप इसको लिख सकते हो सिंस ABC सिमिलर टू लाइक दिस. सिंस ABC, okay, is similar to triangle AMP, therefore corresponding sides of similar triangle will be divided into the same ratio. Okay, same ratio. Therefore, you can write like CA upon PA is equals to BC upon B. Okay, ये आप लिख सकते हो. हमने क्या करें, फर्स्ट ट्रायंगल में लाइक CA upon AP हमने की is equals to this BC. अगर आप लेते हो तो BC में आप AC को भी बता सकते हो. BC अपॉन सॉरी BC अपॉन, अगर आपने BC लिया तो AB आप नीचे लिख सकते हो. एक्चुअली यहाँ पे जो आपकी MP है BC अपॉन MP. सो अगर आपने इस ट्रायंगल में फर्स्ट आपने AC अपॉन AB शो करे तो किस में शो करे? आपने फर्स्ट ट्रायंगल आपने लिए है ABC में आपने AC लिए हैं. दूसरा आपने PA कौन से ट्रायंगल की अपने लिए? AMP के लिए. तो आपने इन दो ट्रायंगल को बताया रेशियो में इज इक्वल्स टू. दूसरा आपने यहाँ पे AP नहीं होंगे, BC लिया है from triangle ABC upon MP. MP is the side of which triangle? AMP. So उसके जो corresponding sides होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. बस आपको इतना ही बताना है. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, now question number 10. And why are you not sending your homework? Tell me honestly. In Google Classroom, I'm not getting except Divya, Kasis, and one more student, Sarveshwar, I think. What about you, Sapna? अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली एटलीस्ट सेंड कर दिया करो so that I can check your homework, especially for the 10th class. What about you, Aditi, Ragini? Okay, tell me. Divya, Ragini, Sapna, Shivam, and Aditi have joined today. So will you please send me your homework of this 6.3 exercise today? If this यस will be मैम. possible. Yes, ma'am. वेरी गुड. सो एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हुए हैं उनकी होमवर्क मैं चेक करूंगी. अगर आप मुझे नहीं सेंड करते हो सो आई विल कॉल यू. I hope you are getting all that concept of this questions. Now the next question is question number 10. What is question number 10 exactly and what is given in this? So there is a CD and GH. The question is saying CD and GH are respectively the bisector of ACB and EGF. So ACB उसने बोला है first angle ACB की जो bisector है that is CD, okay, and EGF की जो bisector है that is angle GH. So here according to that आपको क्या करनी है? पहले ACB एक triangle ड्रॉ करनी है, दूसरी EGF triangle ड्रॉ करनी है. इसकी फिगर ड्रॉ की हुई नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ how you can draw. So CD इसको bisector बताया of angle ACB. So ACB
तो आप क्या करोगे, पहले आप ABC ड्रॉ करोगे एंड फ्रॉम दिस पॉइंट C यू कैन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB. ओके, नाउ इन ट्रायंगल ECF GH विल बी द बाइसेक्टर. तो हमने इसको बाइसेक्टर बताया. तो बाइसेक्टर का मीन क्या है, जो ट्रायंगल होंगे वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे. इट मींस दिस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल, एंड इस ट्रायंगल में आपकी जो एंगल 4 होगी दैट विल बी इक्वल टू एंगल 2. ओके, सो हमने दोनों के बाइसेक्टर्स बताए. नाउ such that D and H lie on side AB. So आपको उसने ये भी बोला है कि वो AB के साइड लाई कर रही है एंड EF of triangle ABC and GF. तो हमने उसके अकॉर्डिंग पहले फिगर ड्रॉ किए, तो फिगर आगे खूब समझ में आ गए. Now if triangle ABC is similar to FEG, उसने बोला है ABC if it is similar to FEG, ABC is similar to FEG. अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो यू नो दैट अगर सिमिलर होते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. जितने भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे, तो हमने सारे साइड्स को क्या बताया, सेम रेशियो में डिवाइड किया. एंड all angles, all their corresponding angles will be equal. So हमने उसको भी शो कर दिया. So with the help of the similarity of criteria, हमने उसके सारी possibilities पहले लिखे हैं. Okay, and now we have to show first आपको क्या बतानी है, CD upon GH. Okay, आपको ये प्रूव करनी है. This CD upon GH, CD upon this GH जो आपने मीडियन ड्रॉ करनी है is equals to AC upon FG. Okay, AC upon FC. तो इस दो साइड को पहले आपको सेम रेशियो में डिवाइड करने हैं. सेकंड आपको CD is equals to CD upon GH. So CD upon GH is equals to AC upon FG आपको प्रूव करनी है. ओके, हमने इसके सारे पॉसिबिलिटी लिखे हैं. क्यों लिखे, because we can take the help of this possibilities of this similarity of criteria. So now in both triangle ACG and GFGH, हमने दो ट्रायंगल क्यों लिए,